Very initial time, I was also more exposed towards art and craft, towards more creative things. मेरा भी यही क्वेश्चन था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग कि मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, मेरा सिविल बैकग्राउंड है, आई हैव नॉट गिवन एनी एनडीए अटेम्प्ट एंड ऑल, तो क्या इंटरव्यूअर मुझे कंसीडर करेंगे ना? दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई एंटर्ड इनटू दैट कॉलेज। मैंने लोगों को देखा कि अरे यहाँ पे तो एसएसबी दे के लोग आ रहे हैं, एंड आई मेड सम फ्रेंड्स देयर कि अरे अच्छा एसएसबी होता क्या है। A lot of people who are preparing right now and they might be freshers. You are coming from a civilian background, having no knowledge about how defense examination works, पूरा process क्या है, but what is your suggestion to those people who are preparing? तो मैं फटाफट अपना लंच करके आई यूज्ड टू गेट टू द लाइब्रेरी, वहाँ पे अपना रिवाइज करता था। What kind of interview that went there and किस तरह के questions आपसे पूछे गए and how you handled them at that particular time when he was putting pressure on you? I would say कि interview was the nightmare of this whole SSC process for me. और उन्हें पता नहीं एकदम से क्या हुआ, कहते what did I ask you? Sir, management college, कहते why you beating on the bush? You see that door? I'll throw you out of the door. Any few observation that you had throughout the GTO, because it was your first SSP attempt, that you have realized that these few tasks are very important. Any 2 to 3 tasks you want to discuss? Hello everyone, welcome back to Defense Roger, and I hope you're doing well. My name is Sheetal Yadav. In today's episode, we have Gaurav, whose journey will inspire many defense aspirants, but especially who are coming from non-defense background. In today's episode, we are joined by Gaurav, who secured an impressive All India rank 65 in CDS IMA entry and earned his recommendation in his very first attempt. What's remarkable is that Gaurav never appeared for NDA and does not come from military family. In fact, he completed his schooling with commerce background and went on to study Shaheed Sukhdev College of Business Studies, one of the India's top undergraduate business colleges. Beyond academics, he's passionate about music, singing, art, and it was during his college years when he met defense aspirant, learned about the armed forces, and decided to pursue his path himself. With the right mindset and a clear understanding of SSB process, and by staying authentic throughout his preparation, he achieved what many aspirants dream of, getting recommended in his very first attempt. In today's conversation, we'll discuss his serious preparation strategy, SSB experience, key learnings, common mistake aspirant makes, and practical advice for anyone who is preparing for armed forces. So without any further ado, let's get back to the video, and I hope you'll get to learn something new. Let me know in the comment section below. Hi Gaurav, welcome to the platform Defense Roger. And I mean, your journey is completely different from the past videos which I have done. I mean, defense ke related koi example hai nahi diya, like NDA or any other defense exam. You gave only one exam, serious. You got screened in, you cleared the written, you got screened in. Recommendation liya, merited, and now we are talking before you join the academy. So many congratulations on scoring rank 16 serious IB entry, one of the competitive entries जो candidates and aspirant को लगती है. And I think there are a lot of few areas which I want to discuss with you, because as a fresher mindset बहुत अलग होता है और as a repeater mindset बहुत अलग होता है. तो I really want to target कि आपने कैसे अपनी journey को navigate किया. But thank you so much for being here and many congratulations. First of all, ma'am, thanks a lot to you. मतलब it feels like कि a dream come true. मतलब जिसको हम देखा करते थे from where we used to get all the information. Even before preparing for CDS and all, जब मैं देखता था just to know कि हाँ officers and all आए हैं मैम के चैनल, बालवान सर आए हैं, let's see कि वो क्या बता रहे हैं. So and now talking to you in person, this feels really amazing. And yeah, you already mentioned that I come from a civilian background. My name is Gaurav, and I come from a civilian background. I hail from Karnal, Haryana, and my schooling has also been done from Prakash Public Senior Secondary School, which is also a normal school, not any kind of military school, not any kind of senior school, and all. And from very initial time, I was also more exposed towards art and craft, towards more creative things, not just like sports and all, which many people right now confuse कि अरे यार मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि मेरा भी यही क्वेश्चन था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग कि मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, मेरा सिविल बैकग्राउंड है, आई हैव नॉट गिवन एनी एनडीए अटेम्प्ट एंड ऑल, तो क्या इंटरव्यूअर मुझे कंसीडर करेंगे नॉट. सो आई वाज मोर इन्वॉल्व इनटू दिस, एंड तो बाद में भी when I entered into college, I was
more towards participating on stage performances, being the lead singer. I also performed as a lead singer in college. And I was more into organizing some Nukkad Natak competitions. I was in a social entrepreneurship society and all such things I was trying just to explore what is my interest. Because Okay. school में I used to see कि हमारे directors and principal were appointed who were retired colonels, who were retired officers. So watching them, the way they used to speak, the way they used to represent themselves, that was really motivating for me. कि अगर यार कुछ बनना है तो I want this kind of personality. I used to think that, and this instilled inside me from very initial level. But later on, coming to like 10th standard, I got to know that my eyesight is not 6 by 6. And उस time पे I had very limited knowledge about officer's entry, and also my parents are from rural background. तो उनको भी नहीं पता था. They were also aware about कि हाँ भर्ती and all चलती है हरियाणा में. तो Hmm. उसमें सब कुछ स्टैंडर्डाइज चाहिए होता है. तो यार गौरव तू नहीं कर सकता, एलिजिबल नहीं है. तो आई वाज लाइक कि चलो मे बी नॉट इन दिस लाइफ टाइम, कभी और देखता हूँ कि मे आई गेट अ चांस इन नेक्स्ट लाइफ टाइम. तो आई देयरफॉर गॉट इनटू कॉमर्स, क्योंकि आई वाज लाइक कि मुझे आर्ट तो आती है लेकिन मैं इस आर्ट को मोनेटाइज कैसे कर सकता हूँ. तो मैंने आर्ट ऑर्डर्स लेने स्टार्ट किए. मैं ऐसे पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाता था, लोगों को सेल करता था. तो वहां पे आई गॉट टू लर्न की स्केलिंग एंड ऑन कैसे क्या करना है. मेरे टीचर से बात करी, उन्होंने बोला कि अच्छा गौरव, आपको अगर बिजनेस सीखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एंटर इनटू कॉमर्स. आफ्टर दैट देयर इज अ कॉलेज, शहीद सुखदेव कॉलेज, which I was into, which is India's #1 undergrad business college right now. तो Okay. वहां पे आई वेंट एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई एंटर्ड इनटू दैट कॉलेज. मैंने लोगों को देखा कि अरे यहाँ पे तो एसएसबी दे के लोग आ रहे हैं. एंड आई मेड सम फ्रेंड्स देयर कि अरे अच्छा एसएसबी होता क्या है. फ्रॉम देयर आई गॉट टू नो कि अच्छा एसएसबी भी कुछ होता है, स्क्रीनिंग कुछ होता है, कॉन्फ्रेंस वगैरह. दीज वर ऑल टर्म्स दैट आई वाज लिस्टिंग फ्रॉम फॉर द फर्स्ट टाइम. तो Okay. वहां पे मैंने इनके बारे में सुना. और देयर वाज अ गाय हिमांशु, आई रिमेम्बर. तो उसने चश्मे पहने हुए थे एंड आई वाज लाइक कि हिमांशु चल ठीक है, तो स्क्रीन आउट होके आ गया, लेकिन तूने तो चश्मा पहना है, तो Hmm. ऐसे आगे में जा सकता है. तो उसने बोला कि हाँ देयर इज सर्टेन लिमिट टू विच यू आर एलिजिबल फॉर आर्म्ड फोर्सेस. तो वहां पे आई गॉट टू नो अबाउट दिस. मैंने उससे पूछा कि क्या मैं एनडीए दे सकता हूँ अभी भी. तो ही सेड कि अभी तो तेरी एज निकल गई है, तो यू कैन गो फॉर सीडीएस एंड एफकेट. तो वहां से आई गॉट दिस आइडिया कि हाँ मैं सीडीएस दूंगा, एफकेट दूंगा. And this is the chance again life is throwing towards me to join armed forces. So वहां से this whole journey started, man. Okay. And first attempt got the recommendation and already merit in. So one of the relief factor is getting merit in. Because आज के टाइम पे recommendations इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो merit in का बहुत ज़्यादा issue रहता है. So congratulations again, Gaurav, Thank on achieving that. See, you are coming from a civilian background, having no knowledge about, how defense examination works, पूरा प्रोसेस क्या है. सो आई वांटेड टू बी अ बिगनर फ्रेंडली वीडियो सो दैट अगर कोई कैंडिडेट इनिशियल फेज में है एंड ही इज जस्ट लुकिंग अप टू दिस वीडियो, ही अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. सो आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद द रिटन पार्ट. रिटन के अंदर काफी ज्यादा चैलेंजेस इसलिए हैं बिकॉज पीपल हैव दिस माइंडसेट दैट इट्स अ यूपीएससी कंडक्टेड एग्जाम एंड 3 एग्जाम है, तीनों की कट ऑफ क्लियर करनी है और स्पेशली मैथ्स को बैलेंस करते तो जीएस कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है या वाइस वर्सा. तो आपने कैसे प्रिपेयर किया? What was your written score in this one, and how somebody can boost their score? Okay, so ma'am, I started my preparation after my second year. जब मुझे पता चल गया था कि यार corporate thing is not for me. I did 2 internships and one in Bisleri International, one in a private equity firm. वहां से I got this idea कि यार I can do this, but लेकिन long term में मैं एक satisfied life नहीं जी पाऊंगा. So from there, I asked my friends कि यार now I have to start preparation for this competitive area. Hmm. Mainly कि जिसमें सब cover हो जाए. AFCAT was also there, CDS was also there. So I randomly after searching for around a month, क्योंकि आपको खुद देखना होता है कि which teacher is more like you are understanding more from which teacher. तो वहां से I got this channel RWA. From there I started doing their pre-course, which was foundation course, जिसके अंदर वो डिटेल में from basic to advanced for competitive exam सब कुछ prepare करवा रहे हैं. I Okay. started making my own notes, क्योंकि usually people were referring Lucent and all, वो मैंने पढ़ के देख लिया था. I was not able to grasp that much जितना मैं खुद के notes और एक एक concept को clear करके grasp कर पा रहा था. For GS, I made my own notes, geography, polity and all. और उसी से मैं daily daily उसको read करता था. I was not, my aim was not to उसको cram करूं,
माई एम वॉज कि उसको रेपिटेटिव बेसिस पे उसको मैं रीड करूँ, तो जो मैंने किया है उसको रिकॉल करूँ, ताकि वो मुझे दिमाग में फिट हो जाए। एंड देयर आई गॉट सक्सेस की पॉलिटी में तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया था मुझे। Hmm. सेकेंड वॉज इंग्लिश। इंग्लिश के लिए भी आई डिड द सेम। आई रॉट मोर देन 2000 vocabularies which were repeated in previous year exams, also in CDS and all। तो उनको मैं बार बार रिवाइज करता था। ऑल दिस बिकॉज आज के टाइम में सीरियस में इंग्लिश में vocab इज द मेन पार्ट दैट इज वेरी मच कमिंग इन अ वेरी competitive मैनर, जिसमें अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया तो इंग्लिश में यू कैन पुल अ गुड स्कोर। एंड दैट वाज माय स्ट्रेटजी कि इंग्लिश में आई वाज फोकसिंग मोर टुवर्ड्स vocab एंड ऑल, क्योंकि टेंसेस एंड ऑल हमने बेसिक कर ही रखे थे, उसके आई वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग। मैथ्स में मैथ्स वाज आल्सो माय बैड पार्ट फ्रॉम इनिशियल लेवल, क्योंकि मुझे भी डर लगता था मैथ्स से। तो मैथ्स का आई डिड चैप्टर वाइज चैप्टर, आई डिड मल्टीपल क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टफ लेवल, टफनेस लेवल। तो वहां से आई प्रैक्टिस्ड ऑल दिस। एंड फॉर CDS पर्टिकुलरली आई डिड ऑल द PYQs ऑफ लास्ट 15 years। जब पास आ गया था एग्जाम, आई डिड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी ऐसा नहीं था कि मैं बैठ गया और बीच में पॉज कर दिया। मैं फुल जैसे सीटेड पोजीशन होती है एग्जाम में, उसी फॉर्म में बैठता था। सेम टाइमिंग आई यूज टू ट्राई कि मैं उसी टाइम स्लॉट में करूँ जिस टाइम स्लॉट में एग्जाम होता है, ताकि मेरा जो मेंटली और फिजिकली मैं प्रिपेयर हो जाऊँ वहाँ के लिए। तो आई यूज टू टेक मॉक टेस्ट एज वेल। वहां से आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट आई यूज टू एनालाइज ईच क्वेश्चन। अगर मैं 2 घंटे का मॉक लगा रहा था तो 2 घंटे में एनालाइज भी कर रहा था उस चीज को, कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, मेरे वीक एरियाज कौन से हैं, एंड आई यूज टू वर्क अपॉन देम। So this was my strategy to work upon each subject, and this also helped me score 130 marks in my CDS in my first attempt, जिसमें I secured around 64 marks in English, 28 marks I secured in GS, which is not a good score, but obviously I was over the cutoff, and 38 around marks was in mathematics. And how much was the duration जितना आपने preparation को दिया? Ma'am, I started in December 2024 with full energy, and I was preparing till the examination. Exam was in September 2025. So this was the day. Okay. I would like to now talk about the routine and the kind of preparation you did for SSB. And according to your experience, what are the factors that really impact on the course personality that that SSB is looking for? So anything that you want to highlight in terms of routine, in terms of building habits, और आपने कोई भी चीज जो अपनी लाइफ में implement करी है और जिस तरह से prepare किया है, I want to talk about SSB now. Yes, ma'am. So, ma'am, एक जो चीज थी that was lacking in me, according to me, was कि I was not very much into sports. I was not athletic. Whenever I used to look myself in the mirror, मुझे लगता था कि यार ये क्या स्किनी सा इंसान है, मतलब ये फौज में जाएगा कैसे। तो आई रिमेम्बर कि देयर वाज वन ऑफ माय elder sister who was preparing for one of the competitive exams. She told me one line that remained with me. शी टोल्ड कि अगर गौरव तुझे ऑफिसर बनना है या कुछ भी तुझे लाइफ में बनना है, तो स्टार्ट लिविंग लाइक दैट पर्सन। अपनी हैबिट्स को उस टाइप से मोल्ड कर ले, अपने पूरे रूटीन को उस टाइप से मोल्ड कर ले, एंड यू विल इवेंचुअली बिकम दैट पर्सन। अगर जस्ट इमेजिन कर कि तू वो बन चुका है, बट यू आर जस्ट इन अ फेज जहाँ पे तुझे पे नहीं किया जा रहा, यू आर जस्ट वर्किंग अपॉन योरसेल्फ। So that thing I took with myself, and वहाँ से I started building this habit of getting up early. I used to wake up early around 5 a.m. in college, क्योंकि around 9 to 5 मेरी classes होती थी. I used to wake up at 5. I used to revise whatever I had done the previous day. उसके बाद रिवाइज करने के बाद मैं आई यूज टू गो टू द जिम। जिम में अराउंड 45 minutes 1 hour जितना जल्दी मैं कर सकता था मैं करके आता था। आई यूज टू गेट माई मील डन, देन आफ्टर गेटिंग टू द कॉलेज, बीच बीच में जो भी ब्रेक्स मुझे मिलते थे, 12 to 1 वी यूज टू हैव आवर रिसेस व्हिच वाज कॉल्ड इंफिनिटी आवर। तो मैं फटाफट अपना लंच करके आई यूज टू गेट टू द लाइब्रेरी, वहाँ पे अपना रिवाइज करता था, वट एवर यूज टू बी द रिकॉर्डिंग्स मैं उनको कंप्लीट करता था। बीच में कभी क्लासेस स्किप भी करते थे, कोई टीचर्स जो एब्सेंट होते थे, तो वहाँ पे आई यूज टू पुल आउट सम टाइम। और कॉलेज के खत्म होने के बाद आई यूज टू स्टे टिल अराउंड 8 or 9 इन द केबिन्स व्हिच वर देयर फॉर द स्टार्टअप्स एंड ऑल। तो वहाँ पे आई यूज टू सिट अलोन, और वहाँ पे मैं अपनी सारी प्रिपरेशन करता था। आफ्टर कमिंग बैक टू माई अकोमोडेशन व्हिच वाज माई फ्लैट,
तो वहां पे आई अगेन यूज टू रिवाइज वोकैबुलरी एंड स्मॉल थिंग्स, क्योंकि उस टाइम तक मैं एग्जॉस्ट हो जाता था। तो जो छोटी छोटी चीजें होती थी वो आई यूज टू डू. This was my routine during the written preparation phase. Once I cleared the written exam, I obviously went to a coaching. But prior to getting to coaching, I developed these habits of running, gymming, and I was in a good form because those saal se I was doing all this. And I also used to read books. One of the books if I have to mention, is Can't Hurt Me, which is also around this special forces by USC scene. And I would say ki if some aspirants are looking forward to special forces, they must give it a read. So I read many books. In the meantime, I was keeping myself fit, and that confidence was coming. मुझे feel हो रहा था कि हाँ, I'm doing something good. When I get for the SSB preparation, I used to do all my psych and all, VAT and all. VAT मैंने खुद से prepare किए थे regarding my PIQ and my personality, so that वो वहाँ पे stand out करे. ऐसा ना लगे कि हाँ ये mix up हो गया है. Stories I used to do myself and अपने दोस्तों से and all the other candidates जो वहाँ पे थे उनके साथ discuss करता था, ताकि मेरा जो horizon है ideas का वो बढ़े. हम ऐसे, बट वी डू नॉट यूज टू क्रैम ईच अदर्स स्टोरी, वी यूज टू एड अप एलिमेंट्स कि हाँ, फॉर एग्जांपल माउंटेन की स्टोरी है तो these elements could be added into it. So these were the things that I was keeping in mind. I was reading newspaper daily. जो भी न्यूज़पेपर यूपीएससी वर्जन का जो अवेलेबल होता है, I was reading that, mainly focused towards geopolitics and defense. So to keep myself in a good touch with all this. And I also have maintained I had maintained this small notebook जिसके अंदर I prepared all the facts which I was reading from here and there. I used to get it into this notebook, and उसको मैं बार बार रिवाइज करता था, ताकि वो चीज मुझे लेक्चर एट में, जीडी में, एंड ऑल्सो इंटरव्यू में हेल्प करे. एंड दे डिड. Mhm. And for ma'am, the stories and all, which I already discussed. So this was around the psych part. Okay. And also for ground part, I also did ground training for that purpose. I learned ideas. Whenever I used to see structures, मैं दिमाग में start करता था कि हाँ कैसे solve कर सकते हैं इस चीज को. Right. So this was the whole thing that I did for my SSP preparation. Okay. I really like the way you were keeping a diary. I remember my time, so I used to also have a diary. And in my college day, I wanted to work on my vocabulary. So whenever I used to see some video और कहीं पे भी कुछ word देखा, like inquisitive कहीं मैंने सुन लिया, so I used to write it and I used to throughout the day I used to make a target कि इसको 4 से बार use करूँ so that I am getting used to that word. And then इसी fashion में मैंने फिर नए नए words को करना शुरू किया, तो वो word आपकी मसल मेमोरी में आ जाते हैं एंड यू गेट यूज टू दोज वर्ड्स, एंड फिर आपकी मीनिंग उसके बारे में आप सब चीज चेक कर सकते हो. सो लाइक यू आर राइटिंग बिल्कुल. फैक्ट्स, एवरीबडी हैव देयर ओन वेज टू डू थिंग्स. When it comes to screening, I want to just briefly want to discuss about screening test. What kind of experience you had as a fresher? Because fresher के regarding even आपका fresher group है, but that is also a fact कि आप पहली बार लोगों से मिलने वाले हो और उस पूरे सिस्टम को एक्सपीरियंस करने वाले हो. सो क्या चीजें आपने ऑब्जर्व करी और क्या आपकी लर्निंग्स रही हैं? Okay. I would not lie. क्योंकि मेरे coaching में I did multiple times this practice of PPTP and the group discussions and on. So that helped me kind of in my SSP, the real SSP as well. But the interesting thing that happened was कि when the picture was shown to us, मेरे दिमाग में वो idea आ गया था कि okay, I have to keep the topic this and this. बट वहां पे टाइम का पता ही नहीं चलता. व्हेन यू आर इनटू द रियल स्टेट ना, तो वहां पे ऐसे लगता है कि टाइम कैसे चला गया. जब मैंने स्टोरी लिखी वो बीच में छूट गई, एंड द फर्स्ट थॉट दैट केम इनटू माइंड थी गया गोल्डन सन. एंड वहां पे लेकिन आई काम डाउन माई सेल्फ एंड आई सेड कि ओके गौरव, जितने भी तेरे पास वेपन्स अभी हैं, तू क्या करता अगर बैटल ग्राउंड में होता, तो उन सबको यूज करके कुछ ना कुछ करता. तो आई recalled that story in my mind, memorized it multiple times क्योंकि I was just number one. तो first of all मुझे ही story वहाँ पे सुना रही है. तो I remember कि जैसे ही खत्म हुई story, हम वहाँ पे गए, 4 officers were sitting there, and हमें जैसे ही बिठाया तो they briefed us कि okay gentlemen, if any of you were not able to complete your story, you can complete it right now while you are speaking. So they gave 10 seconds. The officer said, okay, we are giving you 10 seconds, just number one. You can after that start your story.
So, but I already revised it in my mind 3 times. So I did not take 10 seconds. I just started my story and all. And उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे ही करके पूरे ग्रुप ने जब बोला एंड आई न्यू कि जब 10 के बाद नेक्स्ट होगा फिर सब कूदेंगे एंड दिस वाज व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि पहले से ही अपनी टोन को थोड़ा सा ऊपर रखो फ्रॉम नॉर्मल से थोड़ा ऊपर रखो ताकि आप वहाँ पे स्पेस को फिल कर पाओ वहाँ पे अपना रूम क्रिएट कर पाओ तो मैंने वही किया आई लूज माई वॉइस टू अ बिट ताकि वो ऐसे रूड भी ना लगे सब बोल रहे थे जहाँ पे थोड़ा सा ऐसे डाउन आया आई एंटर्ड इनटू द कॉन्वर्सेशन वहां पे आई स्टार्टेड स्पीकिंग एंड इट हैपेंड 3 to 4 times व्हेन एवरीवन वाज साइलेंट एंड आई वाज स्पीकिंग बट आई ऑल्सो केप्ट दिस इन माई माइंड कि मुझे डोमिनेट भी ऐसे दिखना नहीं है तो आई अकोमोडेटेड एवरीवनस व्यू I listened, I nodded to everyone who was speaking. I was not sitting like, कि, okay, मेरा हो गया. I was keen towards everyone's point of view. वहाँ पे मैंने सुना उन लोगों को and there was a point जब चेस नंबर 3 ने बोला gentlemen, I think we should take female as a protagonist. वहाँ पे सब सब चुप हो गए and also every officer was looking at us कि अब तो फंस गया ग्रुप and I knew कि अगर यहाँ पे फंस गए तो पूरा ग्रुप वॉच आउट तो वहां पे ऐसे कि ओके चेस नंबर 3 वी कैन अकोमोडेट योर पॉइंट वी कैन आल्सो अकोमोडेट अदर्स पॉइंट एज वेल वो मान गया एंड वहां से वी लेट द ग्रुप फॉरवर्ड एंड अल्टीमेटली एवरीवन नॉमिनेटेड मी फॉर द ग्रुप स्टोरी एंड दिस वाज आवर स्क्रीनिंग प्रोसेस Okay. But what about psych test? Like, if I have to ask specifically, because PPDT or story writing in TAT, as people consider it like quite similar, but yes when ma'am. you have to write continuously 12 stories back to back, how was the idea of writing that? I mean, how you used to write it, और कोई कैसे उसको अपने लेवल पे प्रिपेयर कर सकता है? Because I've generally seen few mistakes that people generally do. First thing, they start copying stories what recommended candidate has written instead of just understanding ठीक है okay this was the format he followed या इतना लंबा story इन्होंने लिखा है जो भी whatever thing it is. Secondly, it's very difficult to create ideas and to add actions, so there are so many challenges I'm sure you must have faced. So how you have really focused on TAT, if I want to ask? Yeah. Initially तो that was challenging for me as well लेकिन then I started analyzing the picture first of all I used to look in the center analyze the foreground then I used to go to the background पूरा Okay. उसको scene को समझ के I used to take almost 20 seconds to analyze the picture क्योंकि you get 30 seconds to see the picture then I again used to see it in a full manner ताकि एक scene set हो जाए मेरे दिमाग में I used to take more seconds as required to create the theme of the story. And after setting the background of the story, when I'm writing, I used to introduce the character. I used to set the background, and I used to try कि जो मैं character ले रहा हूँ, that is representing me. Me as in कि वो मेरे ही characteristics and मेरे ही PIQ and मेरी personality के around revolve हो रहा है. क्योंकि इफ आई क्रैम फ्रॉम एनी अदर पर्सन तो ऑब्वियसली साइक को पता चल जाएगा कि इसने क्रैम किया है तो आई यूज टू अप्रोच इट लाइक दिस कि अपने ही रिगार्डिंग अपने अराउंड उसको रिवॉल्व करना है देन आई यूज टू इंट्रोड्यूस इट आई यूज टू क्रिएट द होल कॉन्टेक्स्ट की क्या क्या चल रहा है स्टोरी में एंड फॉर गेटिंग द आइडियाज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी आई यूज टू डिस्कस इट विद माई फ्रेंड्स कि अच्छा तुमने क्या लिखा है वट एलिमेंट्स आई कुड एड इफ आई एम creating a story related to trekking, if I'm creating a story related to trends and all. So that I used to do for taking more and more ideas. And I used to keep it not too lengthy and not too concise. I used to keep it around 10 to 12 lines. और उसके बाद the 12th story which we usually have the blank screen वो मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखी थी कि 4-5 स्टोरीज मैंने पहले से प्रिपेयर कर ली कि अगर जो पूरी 11 स्टोरीज की जो थीम है उसमें अगर इट इज अबाउट आउट गोइंग इट इज अबाउट माउंटेन एंड ऑल तो मैं 12th स्टोरी बना दूंगा अपने कॉलेज में मैंने कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया है जिसमें आई कैन ऐड और रिसेंबल माई पर्सनैलिटी का फैक्टर जो बाकी 11 स्टोरीज में मैं नहीं कर पाया तो Okay. दैट आई यूज टू डू यस मैम Okay. What about WAT, SRT, and ST? Because after TAT, these three tests are also very crucial. WET, ma'am, words were given to us which are very much repeated in SST. So पहले तो we used to discuss the words and सबके common ही हो रहे थे which I felt. And lastly, जब मुझे ऐसा feel हुआ था तो I created my own words which were more related to me. For example, if the word is strength,
So since I go to gym, so I will write strength training is good for health. Other person can add write something else. But usually मैंने क्या देखा है, लोगों के बहुत जेनेरिक सेंटेंसेस हो जाते हैं, जिससे साइक भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि इसकी पर्सनालिटी और उसकी पर्सनालिटी में डिफरेंस क्या है. Hmm. So I used to relate it with my PIQ, with my personality. That was my strategy for that. And you talked about SRT. SRT also I practiced, which were available there on internet and all. I used to keep the SRTs to the point, very concise. क्योंकि कई बार क्या होता है, वी ओवर थिंक. कभी कोई सेंटेंस आ गया कि इट वाज गेटिंग डार्क एंड ही वाज ऑन अ बाइसिकल, देन ही. सो उस टाइम पे मेनी पीपल यूज्ड टू थिंक कि अच्छा डार्क हो गया है, ही विल कॉल हिज फ्रेंड एंड ऑल. But that is a point where they are checking your fear of darkness, and कई बार स्विमिंग का भी फैक्टर आ जाता है उसकी जगह कि Okay. आपको कोई डूब रहा है तो आप क्या करोगे. तो वहां पे इफ यू जंप एंड फिर उसके बाद कोई और तीसरा सेंटेंस आता है, उसमें आप रस्सी फेंकते हो, तो दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स योर पर्सनालिटी. अगर आप पहले में कूद रहे हो तो तीन सेंटेंसेस के बाद वाले में भी कूदना ही है आपको, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में है कि आपको पानी से डर नहीं लगता. बिल्कुल. तो वहां पे यू हैव टू कीप योर सेल्फ सिंपल, यू हैव टू कीप योर सेल्फ टू द पॉइंट, एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ क्लियर एंड कंसाइज. दैट वाज माय स्ट्रेटजी फॉर एसआरटी. Okay. What about SD? Now you can prepare at your own, but Yeah. सबका अपना अपना prepare करने का तरीका है when it comes to self description. How you have written it, and if there are certain high important points, if you can add. या मैम, एसडी का मैंने क्या किया था. एसडी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने पूछा अपने पेरेंट्स से कि अच्छा आपको क्या लगता है मेरे बारे में, क्योंकि उसमें व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू एंड ऑल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने क्या किया, आई रोट एवरीथिंग पूरा डिटेल में कि मुझे क्या क्या पता है. तो Hmm. मेरे पेरेंट्स क्या सोचते हैं या फिर मैं क्या सोचता हूँ, मैंने पूरा एकदम 2 पेज में आ रहा था तो मैंने लिख दिया. उसके बाद आई स्टार्टेड कंसाइजिंग इट, आई स्टार्टेड मेकिंग इट मोर क्लियर, मोर टू द पॉइंट, एंड आई ऑल्सो केप्ट दिस इन माइंड कि मुझे एडजेक्टिव्स यूज नहीं करने. फॉर इंस्टेंस कि मेरा ये था कि आई obviously everyone would say कि I'm responsible, I help my parents in this and this. So I tried कि मैं उसको examples के through convey करूँ. For example, मैंने जो हमारा renovation का काम था घर पे, I helped in that, I managed the finances and all. So these were the things that I used to mention in my SD. And for other sub questions also, I did the same. And I introspected for a very good enough time. Ki what are the things that I can improve upon? So वो were the things that I wrote in the improvement wala section and on. Or I did take idea from other SCs as well, लेकिन I did not write even a word from them. I Okay. just checked for the template and all. लेकिन I made around 5 to 7 versions of my SC जब तक मुझे satisfaction नहीं मिली. एंड आई देन प्रैक्टिस देम, ताकि वहां पे एसएसबी के टाइम पे मुझे सोचना ना पड़े. और Okay. वहां पे आई रिमेम्बर कि मैं गया और मैंने एसडी सारी लिख दी, एंड देयर वर पीपल फ्रॉम अकेडमी टेलिंग कि अरे यार मेरा वो छूट गया. Hmm. तो दिस वाज द बट कोई एक आधा स्ट्रैटेजी. पॉइंट जो आपको याद आ रहा है, बिकॉज बहुत तरह के लोग होते हैं, कोई एडजेक्टिव्स लिखने शुरू कर देते हैं, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम केयरिंग, आई एम लाइवली पर्सन. सो अगर थोड़ा रेफरेंस मिल जाता है तो अंदाजा रहता है कि दूसरे कैंडिडेट्स या रिकमेंडेड कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं वो कैसे लिख रहे हैं. सो एनी ऑफ दी सेगमेंट, चाहे पेरेंट्स का हो, चाहे सेल्फ का हो, चाहे टीचर्स का हो, यू फील लाइक यू कैन ऐड फ्यू पॉइंट्स टू इट. मैम, वन ऑफ द थिंग इज कि लोग सोचते हैं कि अगर मैंने खुद की तारीफ कर दी, क्योंकि बंदे ऐसे लोग बोलते हैं कि अरे यार तू भगवान थोड़ी है, अपनी तारीफ तारीफ करे, थोड़ी बुराई भी ले. तो आई फाउंड कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही ऐसी कोई बुराई लिखनी जरूरी ही है. अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छा भी लिख सकते हो, लेकिन देयर ऑलवेज एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जो आप मेंशन कर सकते हो. लेकिन आई वुड लाइक टू ऐड कि लोग क्या करते हैं, दे कंफ्यूज बिटवीन द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड द फ्लॉज इन देयर पर्सनैलिटी, जो वो लिख देते हैं वहाँ पे, विच आर नॉट रिक्वायर्ड. इफ समवन इज एग्रेसिव एंड वो वहाँ पे मेंशन कर देता है कि माय पेरेंट्स थिंक दैट आई एम एग्रेसिव समटाइम्स, तो दैट इज द एरिया जो साइक को एकदम हिट करेगा, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी जो विद टाइम डेवलप होता है. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट, एड समथिंग सटल जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो. Maybe you can work upon your maybe you can work upon managing your meals, जो I wrote, because when you are outside in your college or in your academy, so it becomes tough to manage all your meals. That I wrote in my SD ki my parents feel that I can be more regular to my meals. In my improvement areas, I wrote ki I should
try more and more genres of books. So these were the areas which I worked upon. So I Okay. would say कि उन चीजों को लिखो in your backward areas की जहाँ पे आप काम कर सकते हो, not कि जो आपके flaws हैं. Also इतना भी brag मत कर दो कि कोई साइड भी सोचे कि ये तो बहुत ही अच्छा इंसान. Take care. Now, I want to touch upon the area personal interview. That is one of my favorite. And Gaurav, I really want to discuss all the respective areas, like how you prepared and what kind of interview that went there, and किस तरह के questions आपसे पूछे गए and how you handled them at that particular time when he was putting pressure on you, and किस तरह के questions भी पूछे गए हैं मुझे सब जानना है. So yes, please go ahead. I would say कि interview was the nightmare of this whole SSB process for me. Really? क्योंकि यस मैम मतलब इट वाज अ पार्ट ऑफ एसएसबी जिसके बाद आई वाज फीलिंग वेरी डीमोटिवेटेड कि अब तो हो गया, अब तो और नहीं हो रहा. तो लेकिन आई वुड टेल यू कि हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर इट. आई स्टार्टेड doing the preparation from the CIQs which are usually asked by the interviewers. तो उसके I made answers myself. And उसमें भी सब questions I tried to find कि और क्या पूछ सकते हैं. I wrote those questions. I made answers to them as well. And उसमें भी I saw कि कौन सा better हो सकता है, कौन सा better नहीं है. And this was my way of preparing for the questions and all. And for the areas which I was mentioning, for instance, my internship which I did, मतलब PIQ से रिलेटेड जितनी भी चीजें मैंने एक एक जो वर्ड लिखा हुआ था उसमें आई ट्राइड कि मुझे उस चीज के बारे में सब कुछ पता हो. बिल्कुल. क्योंकि इन द रियल इंटरव्यू आई वाज आल्सो आस्क्ड अबाउट माय इंटर्नशिप एंड ऑल. सो दिस वाज टोल्ड टू अस कि अपनी सारी चीजों के बारे में जो जो आप मेंशन कर रहे हो वो सब पता करके जाओ अच्छे से. I also gave a mock interview जिससे I got to know about this idea कि I was more revolving towards business वाला element. Hmm. क्योंकि मेरी पर्सनालिटी में वो वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये तो कॉर्पोरेट इंटरव्यू चल रहा है. तो Hmm. दैट वाज द थिंग दैट आई गॉट टू नो फ्रॉम द मॉक इंटरव्यू एंड दैट आई देन वर्कड अपॉन. और जब व्हेन आई वेंट टू द रियल इंटरव्यू, I remember I entered the room and there was Colonel who was sitting there and he was Sardati and पूरा ऐसे खट्टे खट्टे वो थे and he was having papers in front of his on his table and he was having mobile phone in his hand. नीचे देख के ही उन्होंने बोला ओके सिट डाउन. तो ही सेड ओके गौरव, यस सर. कहते वे आर यू कमिंग फ्रॉम. मैंने कहा सर आई एम कमिंग फ्रॉम करनाल हरियाणा. तो कहते ओके गुड गुड. Why is Karnal called Karnal? I said, sir, because of the significance of Karn. Are you sure? I said, yes, sir. I'm sure it is because of the significance. तो उन्होंने पूछा कि अच्छा what was the kingdom of Karn? अब throughout this process, I knew वैसे भी कि हाँ अंगराज कर्ण है क्योंकि I'm from Karnal, अंगराज कर्ण ये बार बार रिपीट होता ही है दिमाग में. लेकिन वो मतलब वो फेज ही ऐसा था क्योंकि चेस्ट नंबर वन मैं था एंड ही वाज. मुझे एक्सपेक्ट था कि वो पहले बोलेंगे कि ओके आपकी साइड में पानी रखा है, आप Hmm. पहले आप पानी पी सकते हैं बिल्कुल. आपसे. हाँ नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे. सबने मुझे ये बताया था हम कि तू प्रेशर है तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे. लेकिन स्टार्टिंग में ही वाज लुकिंग एट हिज फोन एंड इतना ऐसे भारी आवाज में पूछ रहे हैं ओके अच्छा बताओ. और बीच बीच में हिंदी यूज कर रहे हैं. तो आई वाज लाइक कि क्या चल रहा है. तो मैंने बोला कि सर it was a kingdom I remembered, but right now I'm unable to recall it. But was given by Duryodhan and all that. तो मैंने सारा explanation दे दिया. कहते हैं अच्छा गौरव ठीक है ओके. अच्छा टेल मी कि यू आर कैसे आ कैसे रहे हो आप. मैंने कहा सर आई केम बाय ट्रेन वंदे भारत एंड ऑल फ्रॉम दिल्ली. कहते दिल्ली तक कैसे आए. मैंने कहा सर आई वाज स्टेइंग देयर फॉर माय एफकेट एग्जामिनेशन दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर एफकेट एज वेल. कहते एफकेट में कितना स्कोर किया. मैंने कहा सर इट वाज 145 दिस टाइम वेल ओवर द कट ऑफ आई थिंक. तो कहते हैं कि यार such a candidate with good marks and all good in academics, are you satisfied with 145? कहते sir I think sir 145 is a good score. कहते हैं how can you say that. फिर I justified कि sir it is not that you scored 300 out of 300 in competitive exams. It is more towards scoring well above the cutoff and choosing the questions that you have to answer. तो Hmm. वहाँ पे ही सर ओके. तो उसके बाद ही आज कि गौरव यू हैव डन सो वेल इन योर एकेडमिक्स. यू डिड 92.6 इन 10th 94.4 इन 12th. इतना घटिया कॉलेज क्यों ले लिया. एंड वहां पे आई टुक अ पॉज ऑफ 2-3 सेकंड्स टू एक बार सुनने के लिए अगेन कि उन्होंने बोला क्या है. Hmm. और आई न्यू कि उनको पहले से पता होगा कि दिस कॉलेज इज नंबर वन फ्रॉम लास्ट 6 years.
So he's definitely checking my ego. That was the thing in my mind. That is my assumption. So Yeah. मैंने बोला कि no sir, he this is a good college, decent college, and has provided me with very good exposure, with very good experiences, and I has learned a lot. But Hmm. still, यार, I'm not convinced. और इससे घटिया कॉलेज तो नहीं हो सकता, ये तुम मानना पड़ेगा. तो मैंने कहा ओके 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 सर. तो कहते कि अच्छा टेल मी मोर सच मैनेजमेंट कॉलेजेस दैट आर देयर इन दिल्ली. I Hmm. started with Mahindra कि सर there is Deen Dayal Upadhyay, there is FMS, there is my college as well. और उन्हें पता नहीं एकदम से क्या हुआ, कहते what did I ask you? सर मैनेजमेंट कॉलेज. कहते why you beating on the bush? You see that door? I'll throw you out of the door. मतलब वहां पे there was no point of मतलब ऐसे गुस्सा होने का, Yelling. लेकिन पता Yeah. नहीं वो ऐसे प्रेशर क्रिएट किया उन्होंने एकदम से. एंड Hmm. वहां पे आई वाज लाइक आई सैट बैक एंड ठीक है आई वाज कि भाई अभी निकल जाए बस कैसे न कैसे करके, ये तो बहुत ही ऐसे एग्रेसिव हो रहे हैं. Right. और उसके बाद स्टार्टेड आस्किंग मी मोर अबाउट माय इंटर्नशिप. और इंटर्नशिप में मैम वो इतना अंदर घुस गए कि स्टार्टेड आस्किंग कि अच्छा कंपनी कौन सी में काम किया, ये कंपनी कहाँ पे है, और कंपनी के अंदर भी जिस कंपनी के मॉडल्स तुमने बनाए वो कंपनी कहाँ पे है. और वहां पे ही गॉट सो मच मतलब इनटू डिटेल कि उन्हें एक एक अगर मैं वर्ड बोल रहा था तो ही वाज लाइक कि इसकी जस्टिफिकेशन दो. एंड वो सारा कुछ उन्होंने पूछा. ही वेंट टू डिटेल एंड एकदम से ही शिफ्टेड कि अच्छा व्हाट इफ नॉट दिस. तो अपने आप को कहाँ इमेजिन करते हो अगले 5 साल में. आई टुक अ पॉज ऑफ अराउंड 2-3 सेकंड. मैंने नीचे देखा, मैंने सर कुछ नहीं आ रहा दिमाग में, आई कैन ओनली सी माई सेल्फ इन आर्मी. कहते व्हाट इफ सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए थे, क्या करोगे. वहां पे आई न्यू कि डेस्पिरेशन नहीं दिखा. तो मैंने बोला कि सर ओके आई हैव दिस एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इनटू कंपनीज एंड ऑल, so I will probably go into corporate. तो कह रहे ओके. Then he started asking me more related to my family. वहाँ पे he also asked me कि अच्छा what are your friends वगैरह, तुम्हारे कौन है बेस्ट फ्रेंड. तो I mentioned about one of my best friends, Lavish. So he is currently doing management studies in Leipzig, Germany. तो उन्होंने ये भी पूछा मुझसे. एंड फिर उन्होंने पूछा कि लाइप्जिग की लोकेशन का क्या है जर्मनी में. आई सेड कि सर इट इज टुवर्ड्स द ईस्ट बट नॉट टू द एक्सट्रीम ईस्ट. तो उन्होंने मल्टीपल 3-4 बार पूछा कि आई यू श्योर, आई यू श्योर. अरे ये सर आई एम श्योर कि यहाँ यहाँ लोकेशन है. फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा टेल मी कि व्हाट इफ आई मीट लविश. तो वो क्या बताएगा कि गौरव को किन चीजों को डेवलप करना चाहिए, क्या क्या चीजें उसकी खराब है. तो Hmm. ऐसे कि सर आई डोंट थिंक सो कि ऐसा वो कुछ बोलेगा मेरे बारे में गलत. So Hmm. because I'm working more and more towards myself, improving myself. Then he asked me कि अच्छा गौरव tell me कि what are the things that make you angry. Just to वहाँ पे भी just to check this element of mine. Hmm. तो वहाँ पे I played smart. मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ, अपना स्किल दिखाता हूँ यहाँ पे. So I said कि sir there are things that make me angry and sad at the same point of time, such as the killings that are happening in countries such as Gaza and all. तो वहां से आई गॉट सक्सेस इन दिस टू डाइवर्टिंग हिज फोकस टुवर्ड्स गाजा. तो ही स्टार्टेड आस्किंग मी अच्छा गाजा कहाँ पे है, गाजा स्ट्रिप का क्या सिग्निफिकेंस है. I answered all that because I was prepared with all these facts of West Asia and all. तो Hmm. वहाँ पे I mentioned all about this. Then उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि ऑपरेशन सिंदूर में कितनी किलिंग्स हुई थी. एंड अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मुझे पता था. Hmm. तो वहाँ पे आई सैड कि आई एम सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट. तो देर ऑन ही आस्क्ड मी कि प्रिपरेशन कहाँ से की. तो आई मेंशन कि सर आई डिड माय प्रिपरेशन फ्रॉम आरडब्ल्यूएस. तो वहां पे उन्होंने एकदम से ऐसे नीचे से ऊपर देखा और कहते व्हाट इज दिस आरडब्ल्यू, इज इट रूरल वेलफेयर एसोसिएशन. नो सर इट इज रोजगार विधान के. और वहां पे वो एकदम से ऐसे ओफेंड होके बोले कि व्हाई डोंट यू मेंशन रोजगार विधान के, व्हाई यू सेइंग दिस, यू आर यू हियर फॉर दिस इंटरव्यू. वहां पे ऐसे गुस्सा करके उन्होंने दोबारा मुझे बोला कि आई थ्रो यू आउट ऑफ दैट डोर, आई एम अगेन मेंशनिंग दिस. वहां पे इतना ऐसे दोबारा से प्रेशर मेंटेन करके उन्होंने फिर क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला डाल दिया कि अच्छा गौरव यू डू रनिंग एंड ऑल. Okay, tell me how much would you run in 2 minutes 24 seconds if you run 5 kilometers in 30 minutes. अब Hmm. क्योंकि इतना प्रेशर बिल्ड करके उन्होंने एकदम से कैलकुलेशन वाला सवाल ले दिया. आई वाज लाइक कि सर इट वुड बी मोर देन दिस मच मीटर्स एंड ऑल. आई वाज जस्ट गेसिंग कि इतना इतना होगा. एंड वहां पे वो कहते हैं कि आई आस्क्ड यू एग्जैक्ट 2 minutes 24 seconds. तो वहां पे आई वाज सिटिंग ब्लैंक. आई वाज जस्ट ट्राइंग कि उन्हें वो बोल दें कि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन. लेकिन ही वाज सिटिंग ऐसे ही कि चलो बताओ, मैं तो अब जान के ही जाऊंगा. तो Hmm. फिर मैंने बोला कि सर आई एम गेटिंग दिस मच अप्रोक्सीमेटली 400 meters. तो कहते ओके.
फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, आई यू अवेयर अबाउट द जियो पॉलिटिक्स एंड ऑल? मैंने कहा यस सर, आई हैव रेड सम ऑफ इट। तो कहते कि ओके, जस्ट टेल मी कि थिंग्स दैट यू वांट टू डिस्कस। सो आई सेड कि सर, आई वांट टू डिस्कस अबाउट मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स व्हिच हैपेंड रिसेंटली। तो पहले ही रोके कहते कि अच्छा, ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स क्यों है, फादर ऑफ ऑल ट्रेड्स क्यों नहीं है? मैंने कहा कि सर, बिकॉज इट इज डन विद इंडिया एंड ईयू, and we consider that it is the biggest trade deal which has happened between India. That's why we call it mother of all trades. कहते अच्छा, is EU a country or union? मैंने कहा सर, it's a union and contains many countries, 26, 27 countries. And कहते ओके, स्टार्ट काउंटिंग ऑन योर फिंगर्स। अब मैंने एक बताई, दो बताई, तीन बताई, मैं सात आठ तक पहुंचा। एंड आई वाज लाइक कि मैं ऊपर देखता हूँ कि सर, आप बोल दो कि हाँ हो गया, हो हो गया। गया है। लेकिन he was like कि नहीं, बता तू बता। And I then said कि sorry sir, I'm not able to recall each and every country right now, and these were the countries that I remembered. तो कहते ओके, टेल मी एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस। देन आई सेड कि सर, रिसेंटली बजट भी आया है, एंड आई स्टार्टेड टेलिंग अबाउट डिफेंस बजट एंड ऑल। तो वहां से मुझे रोक के कहते अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन आर यू अवेयर अबाउट एसटीटीज? अब इट वाज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। मुझे बाय चांस ये पता था क्योंकि मैं पढ़ के आया था उसको। हम्म। And I told him, sir, it is securities transaction tax and recently been increased in the recent budget. कहते अच्छा ओके। फिर towards the ending of the interview उन्होंने बोला कि Gaurav, anything you want to discuss heart to heart? I said no sir. In my mind I was like कि बस खत्म कर दो अब इसको, बहुत हो गया। And he said कि अच्छा, anything that you want me to tell heart from heart? I said, no sir. हम्म। फिर तीसरी बार फिर पूछा कि again I'm asking, anything you want to discuss heart to heart? I said no sir, thank you sir. तो लास्ट में भी वो कहते कि अच्छा गौरव, यू बीट अराउंड द बुश वेरी मच एंड वैनिश फ्रॉम देयर। तो ये बोल के आई सेड ओके थैंक यू सर, मैं ऐसे बोल के आ गया बाहर। हम्म। एंड मैं बाहर आया मैम, एंड इट वाज लाइक कि अब तो खत्म ही हो गया, अब तो क्या ही ऐसे की बचा, अब तो हो ही गया। एंड जो राइट। एनसीओ, मुझे बाद में पता चला कि जो एनसीओ बाहर खड़े थे, उन्होंने दूसरे एनसीओ को बोला कि इंटरव्यूअर सर तो एक कैंडिडेट को बहुत डांट रहे हैं। तो ही वाज टॉकिंग अबाउट मी। और जब मैंने बाकी लोगों से पूछा कि तुम लोगों का इंटरव्यू उन सर के साथ कैसा गया, तो दे वर लाइक कि बहुत अच्छे सर थे, बहुत हंस के बात कर रहे थे। एंड आई वाज लाइक कि मैं चेस नंबर वन था, मैं फ्रेशर था, मुझसे कोई हंस के बात नहीं करी उन्होंने। मैं तो सिविलियन बैकग्राउंड से, तुम आर्मी बैकग्राउंड के लोग हो। तो हम्म। वो फिर जो रिपीटर्स थे उन्होंने बोला कि तू टेंशन मत ले, वो थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे तेरे अंदर, वो चेक कर रहे थे। हम्म। तो उस टाइम पे भी आया मैं शाम तक। मैम, मेरा सबसे पहले इंटरव्यू था सुबह सुबह साइक के बाद। शाम तक मैं ऐसे था कि पता नहीं क्या हो गया, कोई मर गया क्या, ऐसी हम्म। शक्ल हो रखी थी मेरी वहां पे। एंड पूरा इस स्टेट में लोगों ने मुझे समझाया, आई वाज लाइक कि चलो अब जीटीओ बचा है, और जीटीओ में आई विल वो गिव अच्छा माय से बेस्ट। करते हैं। अब मैं क्या But ही कर सकता हूँ। right, Gaurav, actually, this kind of pressure, the way you were telling back-to-back questions backfire हो रहे थे, and I was really wondering how you have handled it. And he has not even offered you water throughout the interview. So, being a fresher, the expectations are a little lighter. But maybe yes, he was interested in you, and he wanted to make you feel uncomfortable. And how you behave at that time was something he is trying to observe. तो आपने बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत कामली हैंडल किया, बिकॉज आपने एंगर के रिगार्डिंग भी कुछ नहीं कहा। तो ही वाज जस्ट वांटिंग टू चेक कि इसको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। तो काफी बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए। पर आई हैव रियलाइज्ड after doing so many podcasts, there are a couple of things that every candidate should work on is knowledge. आई मीन नॉट सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज। अगर आप कोई भी इवेंट के बारे में देख रहे हो, रशिया की लड़ाई अगर हो रही है, बहुत टाइम पहले भी, आई मीन स्टिल गोइंग ऑन, रशिया यूक्रेन की जो वॉर थी, व्हाट आर द प्राइमरी फैक्टर्स, क्या रीजन है, पहले सोवियत यूनियन क्या था, आई मीन ईच एंड एवरी फैक्टर, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर impacting that war, who contributed, and what was all the factors that is still impacting, उससे पूरे वर्ल्ड को कहाँ से प्रॉब्लम आ सकता है। सेम जो अभी ईरान में हो रहा है। तो दीज काइंड ऑफ जियो पॉलिटिक्स के साथ साथ जो इंडिया के अंदर भी जो क्राइसिस है, या इंडिया के अंदर जो इश्यूज फेस हो रहे हैं, उसका डेटा, आई मीन वंस यू स्टार्ट डूइंग इट विद मैप, यू विल लव इट and improve Yes, your defense knowledge. I mean, if a person is sitting, is he colonel or brigadier or anything, if you're unable to read that rank, I mean, then yes, you are not justifying the fact ki sir.
कौन इंसान सामने, तो हर तरह की रैंक, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देयर आर सो मेनी गुड वीडियोस which are there on internet. I mean, they have proper graphics and they are showing what kind of work it is. There are so many movies out there to understand, थोड़ा ड्रामा है, बट यू विल गेट अ जस्ट कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, कैसे क्या विजुअल्स के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, एंड द वे you have gone through so many books. I mean, they are also very good source of knowledge. So any forge would want a very knowledgeful person, intelligent people, because they are the one who are going to take decisions based on their experiences and their knowledge. So work on that. I'll not take much time, but we'll talk about GTO now. Since there are 9 tasks, we won't be able to cover all of them. But any few observation that you had throughout the GTO, because it was your first SSP attempt, that you have Yes, realized ma'am. that these few tasks are very important. Any 2 to 3 tasks you want to discuss? Yes, ma'am. Ma'am, the tasks which were also conveyed to me that are important in GTO. The first is the group discussion, which is obviously very favorite to GTO, which I have also observed the GTO was also taking interest in that. So, Mhm. उसमें I will say कि one of the most important thing that differentiates you from other candidates is your knowledge and the facts that you are mentioning. वहां पे everyone was speaking, but 2 to 3 candidates when I was in the group, 2 to 3 candidates were highlighted and also GTO was observing them. और वो वही candidates थे जो facts दे रहे थे, जो सब कुछ सुन रहे थे, and they were being very practical around the topic and were not beating around the bush. So this is very important कि आप facts को prepare करके जाओ. Second and the most important task I consider is the GPE and the PGT which will come forward. GPE may be you should have a good approach while approaching to the problem. क्योंकि कई बार in my GTO as well there was a place BC which was boat club which no one asked about लास्ट में एक कैंडिडेट ने हाथ ऊपर करा था एंड देन द जीटीओ आस्क्ड टू अस कि अच्छा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीसी so then I stood and I said कि sir it can be boat club so he said कि okay this is boat club कि sometimes people do not pay attention towards what he is telling तो वहां पे you should be very attentive कि एक एक चीज को आप ध्यान दो और अगर कोई चीज वो मेंशन नहीं कर रहे हैं तो बाद में आराम से पोलाइटली बोलो कि सर कैन वी अज्यूम दिस थिंग एज बोट क्लब और सो तो वहां पे ही इज चेकिंग योर अटेंटिवनेस एंड द वे यू अप्रोच ऐसा नहीं कि सर आपने मेंशन नहीं करा तो दैट साउंड वेरी रूड एंड ऑल्सो पीजीटी में आई हैव सीन मेनी गुड कैंडिडेट्स इन माय ग्रुप एज वेल हु गॉट कॉन्फ्रेंस आउट the thing was desperation. They were showing कि मुझे आगे जाना है. I was initially behind, लेकिन last तक आते आते I was on the front side fourth and third task में. क्योंकि first task is very simple जहाँ पे आप कर लोगे. Second में कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम आएगी. आप पीछे से अगर आइडियाज दे रहे हो एंड जीटीओ सर को सुन रहे हैं जीटीओ मैम को सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर कंसिडरिंग यू तो Right. उसके बाद धीरे धीरे दे ऑब्वियसली खुद से वो बोलते हैं कि एनीवन हैविंग एनी आइडिया दे कैन कम फॉरवर्ड तो वहां पे डू नॉट शो योर डेस्पिरेशन टेक इट एज अ टीम माय अप्रोच वाज कि ये मेरा ग्रुप है फ्रॉम द फर्स्ट डे कि ये मेरा ग्रुप है और मुझे इन सब के साथ जाके हम सबको रिकमेंड होना so this was the thing in my mind वहां पे so this thing helped me in PGT as well, in HGT as well, and command task. Maybe also he gave me the same task which was given to the PR of the other group. Groups. And in the other the individual individual obstacles में मैम the main injury वाला factor I saw कि जो rope climbing है उसमें the overweight candidates were getting their पूरे हाथ ऐसे खून खून हो रहे थे उनके Mhm. so I would say कि if you are overweight, तो please work upon that. And अपनी grip strength and basic जो आपकी strength है running and all उस पे अगर आप work करोगे तो individual obstacles is very easy. And Mhm. height and all का it's not that tough क्योंकि वहाँ पे आप उस zone में चले जाते हो जहाँ पे you can do it easily. Mhm. So this is the thing that I want to mention about all these tasks. I mean, all the factors that you have included are well said.
तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपने ऑलरेडी डिस्कस करी है, बट या मैंने जीटीयू में एक चीज़ ऑब्जर्व करी है गौरव, दैट एवरीबडी वांट्स टू शो ऑफ देमसेल्फ इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि सब लोग साथ रिकमेंड हो सकते हैं. आई वाज डूइंग वन Exactly. पॉडकास्ट विद वन जीटीयू एंड ही सेड कि देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ ग्रुप्स, देयर वाज सर्टेन काइंड ऑफ ग्रुप when he was GTO, when he realized that everybody was so cooperative that among seven of them I recommended all of them, but eventually the final recommendation was like उनमें से 4 से 5 कैंडिडेट्स recommend हुए थे. एंड इतना अच्छा ग्रुप था, इतना स्मूथली उन्होंने कंडक्ट किया. आई ऑल्सो ट्राई टू गिव देम सम डिफिकल्टी इन देयर टास्क, बट दे वर वेल ऑर्गेनाइज्ड. एंड आई थिंक वो बॉन्डिंग उन्होंने शुरू से अपने साथ में रखी, और विच इज रिक्वायर्ड. समटाइम वी फील लाइक कि दूसरे इंसान को बोलने ना दे या उसको एक्टिविटी ना करने दे, एंड समटाइम वी स्टार्ट येलिंग ड्यूरिंग दी स्नेक रेस. उस टाइम पे जो छोटी छोटी बिहेवियरल एक्टिविटीज होती हैं वही बहुत मायने रखती हैं. And rest of the Exactly. factors are already mentioned by you. You got recommended in your first attempt, and it's indeed one of the, blissful feeling for any candidate. It's a dream. You got the recommendation, so I know that this feeling is amazing. But what kind of experience you had when you get to know that recommendation हो गया है और family को बताया तो उनका क्या reaction था? And nonetheless, merit was also one of the demons. So उसके बारे में पता चला जब merit in हो गए हो तो how was the feeling of the family? यस मैम, तो मतलब फैमिली का तो स्टार्टिंग से ऐसे था कि हो जाएगा, मतलब ही इज डूइंग वेल इन एकेडमिक्स, तो भी एरिया में जाता है, कॉलेज भी इसको मिल गया अपना फर्स्ट उसमें प्रेफरेंस में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो एंट्रेंस वगैरह दिए, तो दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि लड़का अच्छा है, कर लेगा. बट आई न्यू कि एसएसबी को अच्छा लड़का नहीं चाहिए, उनको एक नॉर्मल इंसान चाहिए जो अच्छा ऑफिसर बन पाए. बिल्कुल. तो आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस आई वाज लाइक कि लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड कि क्या होगा. तो आई रिमेम्बर कि लास्ट डे था हमारा, हम सबका लास्ट वहाँ पे रात थी बिफोर द कॉन्फ्रेंस, एंड वी ऑल गैदर्ड इनटू द डॉर्मेटरी एंड सिंस आई थिंक, तो आई सेड कि चलो यार जो होगा कल देख लेंगे, लेट्स जैम टुगेदर. तो हम वहाँ पे ऐसे जैमिंग कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे, एंड एवरीवन वाज बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री हो गए. तो नेक्स्ट डे केम एंड सुबह सुबह सब ऐसे दे वर गेटिंग रेडी टू देयर बेस्ट. वहाँ पे हमें लाइन में लेके जब वो गए कॉन्फ्रेंस हॉल में, वहाँ पे हम सबको बिठाया, and we were 36 candidates that time. I remember, and वहाँ पे the president of the board came to वहाँ पे हमें बताने के लिए कि what is the whole process, and उन्होंने mention किया कि यहाँ पे अमिताभ आए, यहाँ पे शाहरुख आए, and वो हर कोई mention करता है. रिसेंटली यहाँ पे इलावत जी भी आए, तो ये सब उन्होंने मेंशन किया, लेकिन सब ऐसे थे अपने जोन में कि ठीक है सर, अच्छी बात है आए थे, वो नहीं हुए, हमें तो होना है, हम एक्टर नहीं बन सकते. तो वहां पे भी मैं ऐसे फ्रंट रो में बैठा था, जस्ट लिसनिंग टू हिम, नोटिंग टू हिम, यहाँ सर, यस सर, यस सर. तो उसके बाद जब वो गए एंड हमारी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, तो वी सैट एंड आई रिमेम्बर कि मेरी कॉन्फ्रेंस से पहले 1 मिनट टाइम था, वेटिंग टाइम, एंड आई एंटर्ड द रूम. वहां पे भी 1 मिनट उन्होंने पूछा कि अच्छा गौरव, what did you learn about yourself here? How much would you rate yourself? And कैसा लगा experience and all. So that was all generic. And I remember the interviewer was sitting next to the president. मेरी एक नजर उनकी तरफ गई, फिर वापस प्रेसिडेंट पे आ गई कि अच्छा ये कुछ बोले ना, मुझसे कुछ पूछने ना लग जाए, कुछ फ्लैग वगैरह तो, क्योंकि ये मतलब बहुत ग्रिल करा था उन्होंने. लेकिन प्रेसिडेंट वाज वेरी नाइस, उन्होंने आराम से पूछा. देन आई केम बैक एंड जब मेरी कॉन्फ्रेंस हुई, मैं आई वाज द ओनली कैंडिडेट, क्योंकि फर्स्ट सेशन नंबर 1 अकेला वहां पे बैठा है वेटिंग रूम में. अब आफ्टर कि सब कैंडिडेट्स आ गए हैं कॉन्फ्रेंस के बाद, तो वहां पे मैं सोच रहा हूँ कि यार गौरव, 1 मिनट का टाइम मैंने सुना है कि ठीक होता है, या तो तुम क्लियर हो या तुम आउट हो. अब इतना घटिया तो नहीं परफॉर्म किया होगा मैंने बाकी चीजों में कि मैं आउट ही हो जाऊं. तो आई वाज लाइक कि ठीक है 60-40 की, शायद 60% में हो जाऊं, लेकिन 40% आई वाज स्केप्टिक कि क्या पता कुछ भी हो जाए, एसएसबी है. तो आई वाज सिटिंग देयर, बाकी लोग आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अरे हमारा तो इतना लंबा चला, हमसे ये पूछा वो पूछा. तो जब सबका हो गया, वी अगेन सैट इन द सेम कॉन्फ्रेंस हॉल. लेफ्टिनेंट कर्नल आते हैं वहां पे, ही अगेन रिपीट्स द सेम, अमिताभ आए, शाहरुख आए. मैंने कहा सर अभी फाइल खोल लो, बस आप बता दो कि क्या हुआ है. तो उन्होंने बोला कि अच्छा, I'll just recite the name of the candidates who are recommended, and मैं रोल नंबर बोलूंगा, you just have to stand, you do not have to say anything, just yes, and साइड में आ जा. you'll get और वहां पे एनसीओ खड़े थे with this cap. एनसीओ के पास ऐसे कैप्स थी, तो वो खड़े हैं, और मैंने देख लिया कि उनके पास 6-7 कैप्स तो है. तो वहां पे उन्होंने तो फिर वो बोलते ओके हम स्टार्ट एंड टेकिंग नेम्स. मुझे लगा भोपाल की तरह आगे पीछे लेंगे, तो उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 1 0800850. तो मैं खड़ा हुआ, यस सर, और मैं साइड में गया, उन्होंने ये कैप दी और मैंने ये कैप पहन ली.
तो आई वाज लाइक कि ठीक है, कैप पहनी, हाथ पीछे, थोड़ा सर ऐसे नीचे। तो वो दैट वाज द जोन की मुझे पता ही नहीं चलता कि वो क्या रहा है। और हम्म। 6 बंदों को अभी 7 गॉट रिकमेंडेड, तो 6 लोगों के और नाम ले रहे हैं वो। एंड आई एम लाइक कि ठीक है चलो हो गया, भगवान ने क्या दे दिया। आई वाज थिंकिंग इन माय हेड कि फर्स्ट हम्म। अटेम्प्ट में कैसे हो गया। हम्म। और वहां पे देन ही सेड, द लेफ्टिनेंट कर्नल सेड कि ओके, रेस्ट ऑफ यू कैन क्लैप फॉर योर फ्रेंड्स। और उन्होंने तालियां जैसे बजानी स्टार्ट करी, और मैम आई गॉट इमोशनल, मेरी आंखों से आंसू निकल गए उस टाइम। आई हम्म। आई थॉट कि रिपीटर्स रिपीटर्स होते हैं ज्यादा इमोशनल क्योंकि उनको वैल्यू होती है इस चीज की। लेकिन somehow उस टाइम पे आई वाज सो ओवरवेल्म्ड कि आई गॉट वेरी इमोशनल। एंड आई रिमेम्बर मैं घर से ऐसे कह के गया था कि मम्मी ये शेड्स लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पता है मैं रिकमेंड होऊंगा, तो शेड्स तो मैं पहनूंगा वहां जाके। फोटो खिंचाऊंगा। तो हाँ, तो आई वाज वेयरिंग दिस सूट लाइक दिस। तो हम्म। मैंने तो एनजीओ सर आते हैं कैमरा लेके, वो कहते हैं ओके रिकमेंडेड कैंडिडेट्स यहाँ पे लाइन में खड़े हो जाओ विद कैप, बाकी हम्म। कैंडिडेट्स जाओ। तो हम खड़े थे, तो आई वाज लाइक वेरी इमोशनल, सब लोग ऐसे गले लगा रहे हैं गौरव एंड आई वाज लाइक कि सर 2 मिनट सर, चश्मा निकालूं सर। मैं ऐसे निकालूं चश्मा, ऐसे लग रहा था कि किसी ने जानबूझ के वो ऐसे रख दिया है कि वो निकले ही ना। और मेरी हम्म। फोटो में ऐसे ही है। तो उन्होंने बोला कि जल्दी जल्दी करो। फिर आई वाज जस्ट स्माइलिंग, आंखें ऐसे लाल एंड आंसू पहुंचे नहीं थे अच्छे से। तो दैट वाज द फोटो दैट वाज क्लिक देयर। राइट। एंड मतलब अगर मैं दोबारा से इसे उसको रिकॉल करता हूँ तो द होल सीन प्लेज इन फ्रंट ऑफ मी। राइट। That was really a very dreamy situation, dreamy experience. ओके। मम्मी पापा को बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? बिकॉज दे मस्ट बी मम्मी पापा वेटिंग का कि अभी कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट आएगा, और जब आई मीन दे रिसीव अ कॉल, यस और नो, सो व्हाट दे जब सेड? मैंने जब मैंने फोन टर्न ऑन किया तो व्हाट्सएप ऑन किया, तो व्हाट्सएप पे पापा का मैसेज आ रखा था, हाँ भाई अच्छी न्यूज सुना। तो दिस वाज द मैसेज जो पहले ही आ रखा था। और हम्म। मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी को से वीडियो कॉल किया, तो मम्मी कहते हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया, कहते पता था हमें। तो दिस वाज द रिएक्शन। तो हम्म। obviously they were very proud कि चलो हो गया। एंड उसके बाद I called my friends as well, तो they were very happy। उसके बाद हमने इलाहाबाद की वहाँ पे कैफे में पराठे खाए। हमने पहले डिसाइड किया था कि भाई अगर रिकमेंड हो गए तो पराठे खाएंगे। तो वहाँ पे हमने अच्छे से एंजॉय किया, कॉल वॉल किए, हम्म। फोन्स मिल चुके थे। तो राइट। दिस वाज द होल एक्सपीरियंस। तब ज्यादा अच्छा लग रहा था, तब ऐसे लग रहा था कि हाँ जो फैसिलिटीज इन्होंने प्रोवाइड करी है अब हम उसको यूज कर पाएंगे यूज अच्छे कर से। पाए। ओके। I mean, Gaurav, the kind of time you have given and the kind of preparation you have gone through, I mean, first attempt, I'll say that it'll help you in long term. जब आप सर्विस में आगे जाएंगे तो हर चीज़ का अपना एक एडवांटेज होता है, तो टेक इट एज अ प्रिविलेज। आई मीन इट्स समथिंग दैट यू शुड चेरिश। सेकेंडली, सिंस पहला अटेम्प्ट था, पूरा प्रोसीजर ही बिल्कुल नया था, और मेरिट तक का सफ़र सब पूछ पूछ के जितना नॉलेज हुआ आपने पूरा गैदर करके प्रिपेयर किया है। A lot of people who are preparing right now, and they might be freshers. You already have done it. Academy is on your way, but what is your suggestion to those people who are preparing? Anything and everything that you feel like sharing, please go ahead. I mean, because these things are really important when somebody is in the preparation phase and they are looking up to you. But first of all, I would say कि जो भी prepare कर रहे हैं, such as the people who are freshers and from civilian background like me. So first thing is कि do not take this as a disadvantage or complex कि उन्हें आर्मी वाले लोग चाहिए, आर्मी बैकग्राउंड होना चाहिए, या फिर उन्हें पहले से एनडीए वगैरह में उन्होंने अटेम्प्ट किए होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। दे आर जस्ट लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट जिससे मोटिवेशन आई। मोटिवेशन कैन कम इन कॉलेज एज वेल एज इन स्कूल। Right. एंड लेकिन वो जस्टिफाइड होनी चाहिए कि वो किसी अच्छे सोर्स से आई है, एंड दैट इज नॉट जस्ट फॉर द मॉनिटरी या फिर जस्ट एसोसिएशन लेवल। तो वो चीज अगर आपके अंदर है, तो दैट्स वेरी वेरी मच द एलिमेंट दैट इज रिक्वायर्ड बाय देम। Right. एंड उसके बाद डू नॉट टेक दिस द कॉम्प्लेक्स ऑफ कि बाकी लोगों ने इतने इतने अटेम्प्ट दे दिए एंड दे आर स्टिल हसलिंग, दे आर नॉट गेटिंग Mhm. रिकमेंडेड। I was surrounded by all the people who had given multiple attempts. I was the only one जो पहले अटेम्प्ट में जा रहा था। And even I remember when I was sitting in the examination hall of UPSC, when I was giving the written examination, मेरे सामने वाला बंदा ऐसे पीछे मुड़ के देखता है and said कि फर्स्ट अटेम्प्ट। आई सेड यस। तो कहते वो स्माइल करके आगे टर्न हो गया। Mhm. एंड तो ऐसा ऐसा आपको फील होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, बिकॉज आई यूज टू फील। लेकिन अगर आपकी प्रेपरेशन टू द पॉइंट है, इफ यू नॉट जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द कोचिंग, आप अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो चीजों को, खुद से आप काम कर रहे हो,
I was not just focusing upon what was being taught to me. I was making it tailor made according to my personality. मैं Right. हर चीज को प्रिपेयर कर रहा था एंड आई वाज आल्सो रीचेकिंग थिंग्स विद माय मेंटोर. उनसे मैं पूछता था, क्वेश्चंस पूछता था. आई वाज नॉट कि मैंने एक बार कर लिया तो हो गया. मैं बार बार पूछता था एंड वो ही मुझे बाद में बोलते थे कि भाई इतना तो मत सोच, इतना स्ट्रेस मत ले, ये सब नॉर्मल है. सो Okay. आई वुड से कि कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ और चीजों को मतलब एक्सपीरियंसेस को गेन करते रहो. दे Mhm. ऑल्सो वांट अ पर्सन की जो स्टैटिक नहीं है, एक चीज पे रुक नहीं गया कि एक चीज अचीव कर ली तो बाकी कुछ करना ही नहीं. I Mhm. was trying everything. I was trying music. I also then participated in sports later on in college. I participated in football event. I organized nukkad natak. मतलब I was trying my hands on everything. Or also my communication was not very good from the very start because I come from Karnal. My parents are from rural background. So I was like कि मैं काम कैसे करूँगा इस चीज पे. Mhm. लेकिन देन आई स्टार्टेड टॉकिंग माई सेल्फ. ऐसे मैं टेरेस पे जाता था. आई यूज टू प्रिटेंड कि मैं कहीं पे इंटरव्यू दे रहा हूँ डिफेंस रॉजर पे. एंड वहां पे आई यूज टू जस्ट रिसाइट कि मुझे क्या क्या बोलना है. तो आई यूज टू मैनिफेस्ट एंड वो बोलता Manifestation था. come true. एग्जैक्टली. आई यूज टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग कि ऐसा ऐसा होगा. कॉलेज का भी आई यूज टू मैनिफेस्ट. एंड मेरे फ्रेंड्स जो थे, मैं उन आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल एज वेल. Someone is preparing for UPSC, someone is doing well in corporate as well, someone is abroad. So surround yourself with positive and good people who are working hard, who are working on themselves, Right. and do read good books, do gain knowledge, work on your communication, and stay calm whenever it comes to doing any exam. You are giving an exam, you are giving any interview, be it SSP. So calmness is the thing that I think जिसने मुझे help किया है. एंड अगर आप काम होगे तो कामनेस के बाद आपके पास क्लैरिटी आएगी. क्लैरिटी के बाद आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा. एंड everything when it is combined with knowledge, so Mhm. that would help you along. And I have this one thing that I want to say कि अगर आप आपके पास नॉलेज है लेकिन आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, then that knowledge is of no use Yes. क्योंकि वो किसी को पता ही नहीं चल रही. तो दीज आर द थिंग्स आई वांट टू से टू ईच एंड एवरी कैंडिडेट कि इस चीज का प्रेशर मत लो कि कोई पीआर आ रहा है आपके ग्रुप में, कोई रिपीटर है या कुछ भी है. एवरीवन इज द सेम. सबको एक तरह से असेस किया जाएगा. इट इज जस्ट दैट कि उस 5 दिन के दौरान कौन अच्छा परफॉर्म करता है. अगर आपकी पर्सनालिटी में वो है और वो उन्हें आपने दिखा दिया, यू हैव टू सेल योर सेल्फ टू देम. हम बिजनेस में यही बोलते हैं कि Mhm. इट इज यू हु हैव दिस प्रेशर टू सेल योरसेल्फ. तो आपको अपनी जो पर्सनालिटी है, अपनी ट्रेड्स है, उसको वहां पे दिखाना पड़ेगा और उसे वहां पे सेल करना पड़ेगा. अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो देन यू गेट रिकमेंडेड ऑफिस. Right. Right, Gaurav. I mean, the one thing that I really liked is like surround with the people that inspires you. I've read it somewhere like you are an average of people you are spending your time with. So make sure that you are in a good circle, in a positive mindset kind of people, जहाँ पे आप सीख रहे हो, चाहे वो सेम फील्ड से हो चाहे डिफरेंट फील्ड से हो. आई मीन उसका आपकी लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होगा. सो वी हैव कम टू एन एंड एंड आई रियली बिलीव द टाइम इज गोइंग टू कम व्हेन यू विल जॉइन द एकेडमी एंड दैट टाइम विल आल्सो कम व्हेन यू बी commissioned and you'll become an officer. So enjoy your training because that days might be a little tough for the initial phase, but you are going to cherish all the time in your rest of your life because then the responsibility is going to come on your shoulders when you'll be commissioned. So all the very best, Gaurav, and can't wait Thank to you. see you in uniform because then when you're going to look back to this video, you're going to see like, oh God, I've improved a lot, I've changed a lot. So yes, thank you so much, Gaurav. Thank you, ma'am. Thanks for watching the video and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.